So I'm presenting now. So children, what is there on your screen? Can you see? Solution. Solution. Do all of you can see? Yes, sir. सबको Yes, दिखाई दे sir. रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, Okay, sir. great. So let's see, what do you mean by solution? पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए? Solution is a homogeneous mixture. Solutions are never compounds. Solutions are never pure substances. Rather, they are mixtures. What kind of mixtures are they? They are homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures means there is uniform composition of constituent particles, and the constituent particles are not visible because they do not have distinct boundary of separation. So solutions are homogeneous mixtures of two or more substances. For example, when we squeeze out lemon in water, what we get? We get lemon water or lemonade. When the mixture is fully prepared, we would not be able to see lemon particles and water. Particles of lemon juice and waters will not be visible to us because there is no boundary of separation between them. Similarly, when sugar is dissolved in water, sugar breaks into very fine particles and goes to interparticle space of water. As a result, the solution exists in single phase. There is no boundary of separation between the sugar particles and water particles. So water particles and sugar particles, they appear in single phase. They cannot be distinguished where there is sugar particle and where there is water. Though the overall solution appears like water, but this will not be water because water is a pure compound. Here it will be a solution. Similarly, soda water. What is there in soda water? Can anyone tell me? What is soda water? Anyone? सोडा वाटर में क्या होता है बेटा? चैट बॉक्स में मत लिखना बेटा, चैट बॉक्स इज नॉट विजिबल टू मी. ठीक है, यू कैन स्पीक इट आउट. So soda water contains carbon dioxide gas dissolved in water. So when carbon dioxide gas is dissolved in water after compressing, then it becomes acidic and is known as soda water. Soda water is present in all soft drinks, cold drinks. ठीक है, cold drinks are therefore acidic because they contain carbonic acid. Carbonic acid means carbon dioxide gas dissolved in water forms carbonic acid. So solutions are the homogeneous mixture of two or more substances. Now, components of solution. So there are two components of solution. One is called solvent and another is called solute. ठीक है, समझ में आया? There are two components of solution. One is called solvent and another is called solute. अब बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? Solvent is that component of solution which is present in large amount or which is present in excess. Whereas solute is that component of solution which is present in a small amount. बस यही definition सही है. बाकी जो कुछ भी हम लिखते हैं, the substance which dissolves other substance is called solvent or the substance which get dissolved into a solvent are called solute, ये सही definition नहीं है because we don't know which substance is dissolving which substance into each other. Fine. So the correct definition of solvent is the component of solution which is present in large amount or which is present in excess. Similarly, solute is that component of solution which is present in less amount. देखिए क्या लिखा है? The components of the solution that dissolves the other component in it and is usually present in larger amount. Such component of solution is called the solvent. मतलब solution का वह part जो ज्यादा amount में present रहता है उसको solvent कहते हैं. For example,
water is a solvent, alcohol is a solvent, because they are generally present in large amount. But if alcohol is mixed in water, how can we decide which is solvent? One which will be present in large amount would be solvent. ढेर सारे वाटर में थोड़ा सा अल्कोहल डाला, वाटर विल बी सॉल्वेंट. ढेर सारे अल्कोहल में थोड़ा सा वाटर डाला, अल्कोहल वुड बी द सॉल्वेंट. जो भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स सॉल्यूट. द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज dissolved into the solvent and is usually present in lesser quantity. Such component is called the solute. For example, salt, sugar, iodine, etc. when dissolved in large amount of water, then they behave as solute. Why they are behaving as solute? Because they would be present in lesser amount. So any component of solution which is present in lesser amount would be solute, and the component which is present in large amount would be solvent. What about stainless steel? Stainless steel जिसका आपके बर्तन बनते हैं, utensils, this is also considered as a solution. What would be solvent present in it? Iron, because iron is present to maximum quantity in steel. So iron would be the solvent. What will be the solute? Other metals such as nickel, chromium or carbon, which are present in lesser amount in steel, would be considered as solute. So in stainless steel, iron will be the solvent and nickel, chromium and carbon would be solute. Let's see what are properties of solution. First property, it is a homogeneous mixture. Homogeneous word की meaning आपको समझ में आ चुकी है. ठीक है. So first property of solutions is that solution must be homogeneous in nature. Second, particle size in a solution is less than 1 nanometer. जो भी particles, solute particles होते हैं, उन solute का diameter आप जानते हैं, double of radius is called as diameter. So diameter of solute particle should not be greater than 1 nanometer. What is 1 nanometer? 1 nanometer equals 10 to the power minus 9 meter. 10 to the power minus 9 meter का मतलब क्या हुआ? 1 divided by 10 to the power 9. 10 to the power 9 जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या मतलब होगा? 1 लिखिए और 1 के बाद 9 0. तो 1 divided by 1 followed by 9 zeros. That means 0.00000008 zeros फिर 1. This is 1 nanometer. So 1 nanometer means 1 divided by 10 to the power 9 or 10 to the power minus 9 meter. जिनकी डायमीटर इतनी छोटी हो, कितनी हो? 10 पावर माइनस 9 मीटर या उससे भी कम हो, वो सब क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं. So solutions are those homogeneous mixtures in which the diameter of solute particles is less than 1 nanometer or 10 to the power minus 9 meter or 10 to the power minus 7 centimeter. So particles of a solution cannot be seen even with the help of a microscope. सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशंस में, उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि उनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट. इसका मतलब किसी सॉल्यूशन, एक बीकर में हमने एक सॉल्यूशन ले लिया और टॉर्च से उसमें लाइट डालें. अगर आप लाइट डालोगे तो लाइट का पाथ सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देगा, या सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देते. इट मीन्स light is not scattered by the particles of true solution because their size is very, very small. Now, solution is stable. Solution is stable. What does this mean? This means that the particles of solute do not settle down even after a long period of time if it is a true solution. So if the solution is a true solution, then the solute particles do not settle down at the bottom, howsoever long the time duration may be. जैसे अगर आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया अच्छी से, ठीक है, उसके बाद उसको चाहे आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन के लिए रख दो, तो शुगर के पार्टिकल्स जो है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे, बिकॉज इट वुड बी अ ट्रू सॉल्यूशन. नेक्स्ट, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration.
अगर हम फिल्टर पेपर यूज करके इनको फिल्टर करें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर के पोर्स जो है, जो होल्स है उसमें, उससे पास हो जाएंगे। इसका मतलब सॉल्यूट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो अ ट्रू सॉल्यूशन कैनॉट बी फिल्टर्ड, चाहे वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हो या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो या पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो या एनिमल स्किन हो या वेजिटेबल पील्स हो। तो वेजिटेबल पील्स मतलब वेजिटेबल्स के छिलके, जैसे लौकी के छिलके, खीरा के छिलके, ठीक है, या एनिमल के स्किन हो। तो ये सब कैसी होती है? सेमी परमेबल। इनमें पोर्स बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स को ही अलाउ करेंगे आर से पार जाने में, ठीक है। सो semi-permeable membranes and ordinary filter paper both cannot filter the particles of solution if the solution is a true solution. बच्चे समझ में आ गया इतना? टेल योर रिस्पॉन्स। Yes, sir. अभी सभी को आ गया? वंडरफुल। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के आधार पे, सॉल्यूशन के नेचर के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वागार्ड होता है ना घर में, पानी फिल्टर करने वाला। तो एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। सो व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज मेड इन वाटर, then it is called aqueous solution. That means if a solution has water as the solvent, then the solution would be called aqueous solution. जैसे salt plus water, sugar plus water, alcohol plus water, lemon juice plus water, जिसमें भी water solvent होगा उस सभी solutions को aqueous solutions कहते हैं। Non-aqueous solutions are those solutions in which solvent is not water. When the solvent is other than water, then the solutions are called non-aqueous solution. A solution in which water is not a solvent. Example, sulfur plus carbon disulfide. सल्फर पाउडर को जब कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करते हैं तो दिस विल बी ए नॉन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्वेंट इज कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस, नॉट वाटर। तो वाटर नहीं है इसमें सॉल्वेंट के रूप में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशंस। So what are true solutions? True solutions are those solutions in which the diameter of solute particle is less than 1 nanometer, जो अभी आपको बताया था मैंने। तो true solutions are those solutions in which the diameter of solute particles is less than 1 nanometer or 10 to the power minus 9 meter. क्या लिखा है इसमें? Solute particles completely dissolve in solvent and are not visible. अब वो कब होते हैं? जब वो विजिबल नहीं होते, जब उनकी डायमीटर 10⁻⁹ मीटर से कम होती है तब। एग्जाम्पल, सुगर प्लस वाटर। So this is a true solution, this is aqueous solution also. अब what are saturated solutions? A solution in which no more solute can be dissolved at given temperature. मान लीजिए कि आपको मैंने एक बीकर दिया केमिस्ट्री लैब में और थोड़ा सा वहां पे आपको सॉल्ट दे दिया, अब बोला कि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए। कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा पहले सॉल्ट उसमें बीकर में पानी में डालेंगे, शेक करेंगे ग्लास रॉड से, इट विल गेट डिसॉल्व, सॉल्ट विल गेट डिसअपियर। फिर थोड़ा सा और डालेंगे, फिर शेक करेंगे, इट विल डिसअपियर। फिर थोड़ा और डालेंगे, शेक करेंगे, डिसअपियर। ठीक है, तब तक ऐसे डाल डाल के उसको शेक करते रहेंगे जब तक कि ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि एक छोटा सा भी क्रिस्टल डालें और वो डिसॉल्व ना हो, नीचे सेटल डाउन कर जाए। जैसे ये कंडीशन आती है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर एट द गिवन टेम्परेचर, दैट स्टेज ऑफ सॉल्यूशन वुड बी कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So a saturated solution is that solution in which no more solute can be dissolved at given temperature. However, if we increase the temperature, some more quantity of solute can be dissolved. क्योंकि solubility is directly proportional to temperature. Greater the temperature, greater is the solubility of solute. तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो और वो फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है। Now next, unsaturated solution क्या होते हैं? A solution in which some more quantity of solute can be further dissolved at given temperature. Fine, understood different types of solutions? सभी की डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. There is one more. Solution can be dilute or concentrated. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो. कंसंट्रेटेड किसको कहेंगे? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स very less quantity or very less amount of solute particles. Concentrated solution is that solution which contains large quantity of solute particles. Now let's see the solubility. What is solubility? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आप कैसे बोलोगे आंसर कि कोई सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि आपको सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कितना ग्राम सॉल्वेंट लेना है. इसलिए solubility can be defined as the maximum amount of the solute or maximum mass of the solute which can be dissolved in 100 grams of solvent. Here the mass of solvent is fixed 100 gram. 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. So the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature is known as the solubility of the solute in particular solvent at given temperature. अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. तो हाउ टू डिफाइन सॉल्युबिलिटी? the maximum mass or the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature. Now let's see what are various factors which affect solubility of solute. First factor is temperature. The solubility of solids in liquids increases with increase in temperature, whereas solubility of gases in liquids decreases on increasing temperature. बहुत ध्यान से समझने की बात है बेटा. अगर आप सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड विल बी डिसॉल्व. बट इफ द सॉल्यूट इज गैस लाइक सोडा वाटर, ठीक है, तो इफ गैस इज डिसॉल्व and then you increase temperature, then the gas will escape out, gas will bubble out. वो बबल बना के बाहर निकल आएगी गैस उसमें से. Therefore the solubility of gases decreases by increasing temperature. इसीलिए क्या होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं बर्नर पे, थोड़ी देर बाद क्या बनने लगता है, उसमें बबल्स बनने लग जाते हैं. वो बबल्स बाहर निकलने लग जाते हैं. हम क्या बोलते हैं कि वाटर बॉईल होने लग गया. एक्चुअली बबल्स क्या है? जो भी गैसेस उसमें डिसॉल्व है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है, जो भी गैसेस वाटर में डिसॉल्व है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस सो दे बबल आउट. ठीक है. सो अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of solids and liquids increases but solubility of gases decreases. दो अलग अलग कंडीशंस हैं. सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, गैसेस की डिक्रीज होती है. देन pressure hardly have any impact on the solubility of solids and liquids. इसका मतलब जब भी हम प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं तो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन the solubility of gases in a liquid increases with increase in pressure. सॉलिड्स पे क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. लिक्विड्स में भी इंटर पार्टिकल स्पेस नियर अबाउट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए लिक्विड्स में भी प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता. गैसेस में लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इसलिए प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसेस पार्टिकल विल कम क्लोजर. व्हेन दे विल कम क्लोजर मोर अमाउंट ऑफ गैस विल बी डिसॉल्व. So pressure increases the solubility of gases in liquids, but pressure has almost no effect on the solubility of solids and liquids. Is it clear? Solids and liquids have no change of solubility by increase or decrease in pressure, but the solubility of gases increases with increase in pressure. बहुत क्लियरली दिमाग में रखना है कि सॉलिड्स में क्या फर्क पड़ता है, लिक्विड में क्या फर्क पड़ता है, गैसेस में क्या फर्क पड़ता है. सबके लिए यूनिफॉर्म एक आंसर नहीं है, हर स्टेट के लिए अलग अलग आंसर है. नाउ नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. और अमाउंट किस में हो सकता है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ मास और इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम.
ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मास और वॉल्यूम प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपको वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का पता है तो कितना ग्राम या कितना ml कितना लीटर सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, ये उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन is known as concentration of solution. ठीक, now concentration of solution can be expressed in number of ways. कई तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें से सिर्फ 3 तरीके हम अभी क्लास 9th में पढ़ेंगे, बाकी क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मास परसेंट। मास परसेंट is represented by W upon W परसेंट। पहला W जो ऊपर लिखा है किसका है, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे जो लिखा है किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास नहीं है ये। ठीक, इसका मतलब जो नीचे W लिखा है ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इट इज डिफाइंड एज the mass of solute in grams present in 100 grams of solution. Mathematically, it is expressed as mass percent. So, concentration of solution in terms of mass percent equals mass of solute upon mass of solution. जो नीचे mass of solution है, ये ध्यान रखना, ये mass of solution क्या है, mass of solute plus mass of solvent. अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ mass of solvent दिया है तो mass of solution निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट को पहले प्लस करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मास परसेंट ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अगर एक का मास परसेंट निकल आया, मान लीजिए सॉल्यूट का मास परसेंट आपने निकाल लिया, तो सॉल्वेंट का मास परसेंट निकालने का तरीका क्या होगा, 100 में से उसको माइनस कर दो। 100 माइनस मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों के मास परसेंट का सम कितना होना चाहिए, 100। Is it fine? Understood all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया बच्चों? Okay, wonderful, great. So next method is volume percent, V upon V percent. It is similar to mass percent, but सिर्फ difference क्या है, instead of mass we take volume. ठीक है, तो पहले वॉल्यूम V का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। नीचे वाले का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू volume of solute plus volume of solvent. It is defined as a volume of solute in ml, milliliter. ml means milliliter. Present in 100 ml of solution. 100 ml solution में कितने ml solute present है? Mathematical expression for volume percent is concentration of solution equals volume of solute upon volume of solution into 100. Volume of solution की जगह पे क्या आएगा, volume of solute plus volume of solvent. Understood? Next and the third method is strength. What is strength of a solution? Strength of solution means it is a method of expressing concentration. Or what is it? Strength of solution can be defined as the mass of solute in gram. ग्राम में लेंगे solute का mass. Mass of solute in gram present in 1 liter volume of solution. मतलब सॉल्यूट का तो मास होगा, लेकिन सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और कितना होगा, लीटर में। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली कंसंट्रेशन इन स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ इक्वल्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द नेक्स्ट एक्सप्रेशन बिकम्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया बच्चों, क्योंकि नीचे जो डेफिनेशन में लीटर है, उस लीटर की जगह पे क्वेश्चन में क्या दिया था, मिलीलीटर। तो अगर इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। क्लियर? So what will be the unit of strength? Gram per liter. Gram divided by liter. Gram per liter. Or it is written as gram liter inverse. Gram liter की power -1 means gram liter inverse.
This is the SI unit of strength of a solution. What is saturated solution? We already discussed. A solution in which no more quantity of solute can be dissolved at particular temperature is called saturated solution. What is unsaturated solution? A solution in which some more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called unsaturated solution. Now here are some questions for you. Okay. First question, what would it mean by saying a 15% of alcohol solution? 15% of alcohol solution का मतलब क्या कि 15 ग्राम ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, इसका मतलब क्या, इसको निकालना पड़ेगा. 15% मास परसेंट दिया है, तो अब आपको क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर इसमें नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है. ठीक है, व्हाट इट इज मेंट बाय सेइंग ए 15% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन. 15% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन मींस either the mass percent of solution is 15% or the volume percent of solution is 15%. तो mass percent 15% का मतलब क्या है कि 15 ग्राम of alcohol is present in 100 ग्राम of water. ठीक है, वॉल्यूम परसेंट का मतलब के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 15 ml of solution is present in 15 ml of alcohol is present in 100 ml of water. ठीक है, ये हो गया 15% का इसका मतलब. नेक्स्ट, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. निकाल सकते हैं. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग, ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 2.5 ग्राम, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. अब यहाँ पे वाटर दिया है मतलब सॉल्वेंट दिया है. ठीक है, आपको सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा. सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 प्लस 2.5. 50 ग्राम मास किसका हो गया, सॉल्वेंट का. 2.5 मास किसका हो गया, सॉल्यूट का. ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 50 प्लस 2.5 मींस 52.5. अब इसके बाद आपको कंसंट्रेशन निकालना है मास परसेंट के टर्म्स में. कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मींस 2.5 डिवाइडेड बाय 52.5 into 100. ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे तो यू विल गेट द मास परसेंट, कंसंट्रेशन निकल आएगा. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में अपने करना है बेटा. नोट्स तो मैं आपको दूंगा, यही वाले नोट्स लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके पास आ जाएंगे. पूरा नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन इन योर नोटबुक. आंसर्स ऑफ ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन मस्ट बी रिटन इन योर notebook. Answers of all in-text questions given in between the chapter should be written in your classwork notebook and that I'll check. ठीक है, इसको भी करना है आपको. ये नोट्स आप प्रिंट आउट लेके अपने पास रखेंगे, साल भर पढ़ने के काम आएंगे. Now third question, name the different types of solutions along with an example of each. कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, दूसरा और अपने एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन. ये सारे टाइप्स जो सॉल्यूशंस के हैं इनको आपको लिखना है अलोंग विद एग्जांपल्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये भी आप डिफाइन लिख लेंगे. अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट का मास कितना है, 40 ग्राम. वाटर का मास कितना है, 320 ग्राम. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन. बढ़िया इजी है. यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है 320, सॉल्यूट का इतना दिया 40, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे फिर निकाल लेंगे. तो मास ऑफ सॉल्यूट NaCl equals 40 gram. Mass of solvent, that is water, equals 320 gram. So what would be the mass of solution? 40 plus 320 equals 360 gram. अब mass percent निकाल लीजिए. So mass percent equals mass of solute into 100 upon mass of solution. That is mass of solute upon mass of solution into 100. This gives 40 gram into 100 upon 360 gram. आप डिवाइड कर देंगे इसको, you will get the answer 11.1%. So in this way we can calculate the mass percent. ठीक, then next question,
200 ml of ethyl alcohol means alcohol is dissolved in 500 ml of water. Calculate the concentration of solution in terms of volume percent. अब इसमें आपको वॉल्यूम परसेंट निकालना है, जिसमें से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है 200 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है 500 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। 500 प्लस 200 700 हो जाएगा, और उसके बाद वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला निकाल के सॉल्व कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स, अच्छा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH इक्वल्स 200 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इक्वल्स 500 ml। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स 500 ml प्लस 200 ml, 500 ml प्लस 200 ml 700 ml। नाउ वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स 200 इंटू 100 अपॉन 700। इसको 100 और 700 डिवाइड कर दिया, कितना बचा 7। 200 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स 2.86%। So volume percent would be 2.86% for this question. Now another question, a solution contains 4.0 gram of NaOH. NaOH is sodium hydroxide. कितना दिया है, 4 ग्राम, मास दिया है, ग्राम है मतलब मास है। प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे अब सॉल्वेंट नहीं दिया है, वाटर नहीं दिया है, क्या दिया है, सॉल्यूशन का मास दिया है 400 ग्राम। If the density of solution is 1.82 ग्राम पर लीटर, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें क्या किया है, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना देके क्या दिया, सॉल्यूशन का मास दे दिया है, और हिंट के लिए आपको थोड़ा सा डेंसिटी दे दिया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है पहले, क्योंकि स्ट्रेंथ किसमें होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, चेंज करने के बाद पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन 4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 400 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.82 ग्राम पर लीटर। अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इक्वल्स कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ट्रांसपोजिंग करके कर लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल्स मास इज 400 ग्राम एंड डेंसिटी इज 1.82 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1.82 से 400 को डिवाइड कीजिए, आंसर वुड बी 219.78 लीटर। तो 219.78 लीटर वुड बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, फिर स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब हम जानते हैं स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब डिवाइड कर दीजिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4.0 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 219.78 लीटर, डिवाइड इट, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर 0.018 ग्राम पर लीटर। So what would be the strength of this solution? 0.018 gram per liter. So in this way we can solve the questions based upon the concentration of solutions. Only 3 methods are there in your course. These 3 methods will be asked. Questions or numerical problems based on only these 3 methods can be asked in class 9. Other methods cannot be asked. Right? So today this is enough. I'm just going to bind up this class. Coming to meet